Let's learn to increase the number of carbon chain, and we have an example of ethane. It can be done by two ways, by even number and by odd number. So let's first do it by even number. Now we have CH3CH3. We have to convert it into alkyl halide HNO in the presence of sunlight. So we'll get CH3, CH2Cl and HCl will be out. One terminal hydrogen will be removed and will attach with Cl to form HCl, and one Cl will be attached to this carbon. Now we'll be using Wurtz reaction. And Wurtz reaction happens in the presence of Na, and we take 2 Na, and with this we take dry ether. Now take alkyl halide, that will be CH3, CH2Cl. If we are taking 2 Na, then same compound will be used again. Here 2 NaCl will be removed, so it will be minus 2 NaCl, and we'll get the product as CH3, CH2, CH2 and CH3. So this is butane. Now we can see that we can increase the number of carbon chain by even number, that will be double only. Suppose we have CH4. We have to use Cl2 in the presence of sunlight, so we'll get CH3Cl and we'll get HCl. Now we will be using this compound CH3Cl and use 2Na, so we'll be using ClCH3 once again. We'll remove 2NaCl, we'll get ethane, NaCl will be removed. So we get ethane from methane. Again we obtained even number of carbon chain. Suppose if we have propane, we are doing क्लोरिनेशन करते हैं किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के, तो क्या मिलेगा CH3, CH2, CH2Cl and HCl will be out. अब इसके साथ वुर्त्ज रिएक्शन यूज करते हैं, CH3, CH2, CH2Cl, 2Na, सेम कंपाउंड यूज करेंगे, CH2, CH2, CH3. Here NaC will be out, so it will be CH3, CH2, 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 CH3, and that will be 2NaCl. So we'll get hexane. So in this way we can increase number of carbon chain by even number. तो even number से हम carbon chain ऐसे increase कर सकते हैं. आइए odd number से देखते हैं. Increasing carbon chain by odd number. So we'll be using Corey-House synthesis. We'll be using Cu plus lithium iodide. So to remember it, we'll learn Cooley. That is Cooley. CuLii. So we'll be using Cui plus Li actually. Now suppose we have CH4, so we'll be chlorinating it and we'll get CH3Cl plus HCl. Now after this, when we take CH3Cl, we'll be using another single alkane group and we'll be using Cui plus Li. So here Cl2 will be removed, minus Cl2 will be removed, and we'll get CH3. Suppose we have this ethane and we have to make propane. This is methane. So from methane we got ethane. अगर अब ethane से propane बनाना है
तो CH3 लेंगे, इसका क्लोरीनेशन कराएंगे सनलाइट के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा CH3 CH2Cl और बाहर क्या निकलेगा HCl। अब मुझे इसे प्रोपेन बनाना है तो मैं क्या ले लूँगा CH3 CH2Cl, इसके साथ क्या लूँगा मैं Cl CH3, सिंगल कार्बन चेन वाला ले लेना है अल्काइल हैलाइड, और यहाँ पे क्या लेना है CuI प्लस लिथियम आयोडाइड। यहाँ क्या लिख सकते हैं हम कोरी-हाउस सिंथेसिस। तो क्या होगा यहाँ से Cl2 रिमूव हो जाएगा -Cl2 एंड विल गेट CH3 CH2 एंड CH3। तो इस तरह हम लोग इवन नंबर कार्बन चेन इवन नंबर से भी इंक्रीज कर सकते हैं और ऑड नंबर से। ऑड नंबर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इसे एक एक स्टेप से हम इंक्रीज कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट मेथड टू इंक्रीज कार्बन चेन। So our next method is using sodium acetylide or disodium acetylide. So sodium acetylide is CS triple bond C minus Na plus. Disodium acetylide is will get C minus Na plus triple bond C minus Na plus. आइए देखते हैं बनता कैसे है। तो मान लीजिए अपने पास एसिटिलीन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, हम लोग ले लेंगे सोडामाइड किसके प्रेजेंस में लिक्विड अमोनिया 196 केल्विन पे। होगा क्या यहाँ CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस बन जाएगा और यहाँ पे NH3 बाहर हो जाएगा, तो ये प्रोडक्ट अपना सोडियम एसिटिलाइड बन जाएगा। अगर इसी से डाई सोडियम एसिटिलाइड बनाना है तो फिर हम यूज़ कर लेंगे NaNH2 लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में और 196 केल्विन टेम्परेचर लेंगे, तो यहाँ से NH3 निकल जाएगा और Na जाके अटैच होगा, तो बनेगा क्या C माइनस Na प्लस ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस। तो इस तरह हम डाई सोडियम एसिटिलाइड भी बना सकते हैं। तो हमारे दो प्रोडक्ट ऑब्टेन हो गए, डेट इज सोडियम एसिटिलाइड एंड डाई सोडियम एसिटिलाइड। मान लीजिए अगर मुझे नंबर ऑफ कार्बन चेन इंक्रीज करना है, सो इट्स इजी टू इंक्रीज नाउ। मान लीजिए कि मेरे पास CH3Cl है और मैं यूज़ करता हूँ सोडियम एसिटिलाइड, तो होगा क्या मैं लूँगा C माइनस Na प्लस ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा NaCl, सो NaCl विल बी रिमूव्ड एंड विल गेट CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये ब्यूटाइन प्रोपाइन कंपाउंड मिल गया अल्काइन ग्रुप, सो वी गॉट प्रोपाइन, यानी हम अल्काइन ग्रुप पा सकते हैं। अगर मुझे इससे अल्केन या अल्कीन बनाना है तो NiPDPT ले सकते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अगर मुझे फर्दर रिडक्शन कराना है तो मैं फिर ले सकता हूँ NiPDPT इन द प्रेजेंस ऑफ S2, सो विल गेट CH3 CH2 CH3। इस तरह हम कार्बन चेन इंक्रीज कर सकते हैं। इसी में हम नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। इसी का एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास है CH3 CH2 Cl, इसमें मैं सोडियम एसिटिलाइड यूज़ करता हूँ Na प्लस C माइनस ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ से क्या निकल जाएगा NaCl विल बी रिमूव्ड, विल गेट CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो आप देखें हम लोग ब्यूट 1 वाइन भी यहाँ से पा जाएंगे। अब इसको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इसमें डबल बॉन्ड अगर सिंगल में कन्वर्ट करना है तो इसका रिडक्शन करा देंगे, और रिडक्शन के लिए क्या होता है अपने पास सबसे इजी NiPDPT या लिथियम एल्यूमिनियम
हाइड्राइड भी यूज़ कर सकते हैं। तो अपने क्या मिल जाएगा, अगर पार्शियल कराएंगे तो CH3 CS डबल बॉन्ड CS2, इसका फर्दर रिडक्शन अगर कराएंगे तो हमें मिल जाएगा CH3 CS2 CS2 एंड CS3। इस तरह हम कर सकते हैं। अब यूज सीखते हैं डाई सोडियम एसिटाइड का। तो अगर अपने पास CH3Cl बना लेते हैं कहीं से, अगर मिल जाता है तो हम सेम कंपाउंड 2 बार यूज़ करेंगे, क्योंकि इस बार डाई सोडियम एसिटाइड है। तो सेम कंपाउंड यूज होगा दोनों तरफ। यहाँ से NaCl रिमूव हो गया, यहाँ से NaCl रिमूव हो गया। कंपाउंड जो बनेगा देख लेते हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। तो हमें देखें यहाँ पे मिलता है ब्यूट टू वाइन। इसको भी अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो मैं इजीली कन्वर्ट कर सकता हूँ, किसका यूज़ करके, NiPD/PT का, एंड विल गेट CH3 CS डबल बॉन्ड CH CH3। अगर मैं फर्दर रिडक्शन कराऊँ NiPD/PT से तो क्या मिलेगा, CH3 CS2 CS2 CH3। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ कार्बन चेन इजीली इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड देखते हैं कार्बन चेन इंक्रीज करने का। That is fourth one, use of KCN. It is potassium cyanide। देखिए क्या करेंगे हम लोग। मान लीजिए अपने पास CH4 है, इसका क्लोरिनेशन कराएंगे। अल्काइल हैलाइड तो नेसेसिटी है बेसिक। SNU लेंगे, अपने पास मिल जाएगा CH3Cl और साथ में होगा अपने पास HCl। तब CH3Cl लेते हैं, इसका रिएक्शन कराते हैं पोटेशियम साइनाइड से। होगा क्या, यहाँ से KCl आउट हो जाएगा, अपने को मिलेगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। अब देखिए पहले कार्बन एक था, अब कार्बन कितने हो गए हैं, 2 कार्बन हो गए हैं। लेकिन इसके पास नाइट्रोजन अवेलेबल है। अगर मान लीजिए इसको रिमूव करना है तो हम इसका फर्दर रिडक्शन कर सकते हैं। कैसे, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका रिडक्शन कराना है तो हम क्या ले सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या यूज़ कर सकते हैं, NiPD/PT। तो हमें क्या मिलेगा, CH3 CH2 NH2 मिलेगा। अगर मुझे यहाँ NH2 हटाना है तो हम इजीली रिमूव कर सकते हैं इसको। यूज़ क्या करेंगे, सो देयर इज यूज ऑफ नाइट्रस एसिड एंड विल गेट एल्कोहल। तो यूज़ करेंगे HON डबल बॉन्ड O का। बहुत इंपॉर्टेंट यूज है इसका, अमीन से एल्कोहल में कन्वर्ट करना। तो होगा क्या, हम लेंगे सेम कंपाउंड CH3 CH2 NS2, यहाँ लिखेंगे HON डबल बॉन्ड O। यहाँ से पार्ट रिमूव होगा, यहाँ से पार्ट मिल क्या जाएगा, हमें मिलेगा CH3 CH2 OH, साथ में मिलेगा N2 प्लस H2O। इस तरह से हम नंबर ऑफ कार्बन चेन इंक्रीज कर सकते हैं। अगर OH रिमूव करना है तो इजीली हम रिमूव कर सकते हैं इसको। तो इस तरह से हम कार्बन चेन इंक्रीज कर सकते हैं। इसी प्रोसेस को एक बार और रिपीट करते हैं। मान लीजिए अपने पास है CH3 इसका पहले क्लोरिनेशन करा लेते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में। सो विल गेट CH3 CH2Cl। अब यहाँ इथेन है, इथेन से मुझे 3 कार्बन चेन का कंपाउंड बना। वी हैव टू मेक 3 कार्बन चेन कंपाउंड्स विद द हेल्प ऑफ इथेन। सो विल बी यूजिंग KCN। यहाँ से KCl निकल जाएगा और प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा CH3 CH2 एंड C ट्रिपल बॉन्ड N। अगर अमीन में कन्वर्ट करना है तो इजीली हम क्या ले लेंगे, NiPD/PT और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं। तो होगा क्या, CH3 CH2 NH2। क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो अगर 2 बॉन्ड रिमूव करना है, 2 हाइड्रोजन इधर चाहिए, 2 हाइड्रोजन इधर चाहिए। 2 हाइड्रोजन इधर आया तो CH2 बन गया और 2 हाइड्रोजन इधर आया NH2 बन गया। इसी का नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करा देते हैं। तो देखिए यहाँ फर्दर CH3 CH2 NH2, क्या ले लेंगे, HON डबल बॉन्ड O। और देखिए प्रोडक्ट क्या मिलता है, CH3 CH2 OH plus N2 and plus H2O. In this way we can increase the number of carbon chain easily.
अब बात करते हैं कार्बन चेन डिक्रीज करने की। सो डिक्रीजिंग कार्बन चेन, important reaction, and this is known as decarboxylation reaction. Because there is use of quicklime and sodium hydroxide. Let's take CH3. Now this is ethane, and we have to make methane, and that is CH4. The basic process, convert it to alkyl halide. So we'll be taking Cl2, we'll get CH3, CH2, Cl and HCl. Now we have to convert it to alcohol. So we'll be taking aqueous KOH, not alcoholic, take aqueous KOH. What happens? KCl will be out and OH will be attached. So it will be, here it will be minus KCl, will get CH3, CH2, OH. Now we have to do decarboxylation, so we need acetic acid or carboxylic acid. So we have to take a strong oxidizing agent. So we'll be taking CrO3 plus H2SO4, that is Jones reagent, or we can take K2Cr2O7 or KMnO4. What we'll get in place of CH2OH, we'll be replacing it with COH. So we'll get CH3COOH. Now what will happen? This part is going to react with NaOH. So H2O will be out and Na will react with this part. So it will become CH3COONA plus H2O. Now this NO will be reacting again with CaO plus NaOH, and that is quicklime. Now here we'll be removing Na2CO3 and H will be added to this part. So we'll be getting CH3H plus Na2CO3. So we easily get CH4 plus Na2CO3. तो इस तरह हम कार्बन चेन को इंक्रीज करते हैं। एक बार प्रोसेस को और देखते हैं ताकि इजी हो जाए समझने में। चलिए लेते हैं हम प्रोपेन। इसका पहले क्लोरीनेशन कराते हैं तो मिलेगा CH3 CH2 CH2Cl, यहाँ से माइनस HCl बाहर हो जाएगा। अब इसका एक्वस केओस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें देखेंगे क्या मिलेगा। विल गेट CH3 CH2 CH2OH और यहाँ से KCl बाहर आ जाएगा। तो ये इट विल बी माइनस KCl। इस पार्ट को लेते हैं जैसे कि दिया है CH3 CH2 CH2OH। यहाँ कराते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, तो क्या ले सकते हैं जोन्स रिएजेंट, और क्या ले सकते हैं K2Cr2O7 KMnO4, और क्या ले सकते हैं फेलिंग सॉल्यूशन, और क्या ले सकते हैं टॉलेंस रिएजेंट। होगा क्या, ये पार्ट CH2OH की जगह क्या ऐड हो जाएगा COH। सो इट विल बी CH3 CH2 एंड दिस विल बी COH। अब यूज करते हैं, लेते हैं CH3 CH2 COH। इसका रिएक्शन कराएंगे हम कॉस्टिक सोडा NaOH से। होगा क्या, यहाँ से H2O बाहर हो जाएगा, अपने पास प्रोडक्ट बचेगा CH3 CH2 CONA। इसका रिएक्शन कराएंगे हम लोग क्विक लाइम और फिर वही कॉस्टिक सोडा NaOH से, तो यहाँ से निकल जाएगा Na2CO3। यहाँ निकलेगा क्या, माइनस का Na2CO3 और H वाला जाके इस पर अटैच हो जाएगा तो CH2 CH3 बन जाएगा CH3 CH3।
तो इस तरह हम नंबर ऑफ कार्बन चेन डिक्रीज कर सकते हैं। थैंक यू।